नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे आज जो कुछ बातें बोलने जा रही हूँ, टुमारो इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम है सुबह। जो बातें हम यहाँ पे शेयर करेंगे सभी सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। ঠিক है, তো আমি এখানে আজকে অনেক কয়েকটা কথা বলতে যাচ্ছি যেগুলো আগামীকাল আমি এবং বাকি যারা আছে ক্যান্ডিডেট সবাই আমরা ফলো করতে পারি এবং অবশ্যই এগুলো খুব বেনিফিট আমাদের হবে যদি আমরা এগুলোকে ঠিকঠাক মতো ফলো করতে পারি। তো অবশ্যই তার আগে ইস লিটারেচারকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন, পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় বা এক্সাম রিলেটেড যে কোনো কিছু নিউজ যেন তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले इस लिटरेचर को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और हमारे साथ जुड़ जानी है। बेल आइकन को प्रेस या फिर हिट या फिर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स कोई कुछ मिस ना हो। ठीक है, तो प्रथमे আমরা বাংলায় বলছি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले हम बेंगली में बोल लेते हैं फिर हिंदी में। প্রথমত পরীক্ষা হলে মিনিমাম 1 ঘন্টা আগে পৌঁছতে হবে, ম্যাক্সিমাম 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা আগে পৌঁছলেও কোনো ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়ত ভ্যালিড আইডি প্রুফ রাখতে হবে, আইডেন্টিটি প্রুফ যেটা দেওয়া আছে নির্দেশিকায়। অ্যাডমিট কার্ডের ফটো থাম্বপ্রিন্ট আগের দিনই রেডি রাখতে বলেছে, সিগনেচার ইনভিজিলেটরের সামনে করতে হবে। ট্রান্সপারেন্ট ওয়াটার বটল, আইডি প্রুফ, অ্যাডমিট কার্ড, পাসপোর্ট সাইজ 2 কপি ফটো অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। পেন আমরা সঙ্গে রাখতে পারি অবশ্যই, যেখানে আমাদের অ্যালাউ করা হবে আমরা নিয়ে যাব, অ্যালাউ না করলে ওনারা যদি প্রোভাইড করেন তাহলে খুবই ভালো কথা। তার সাথে কী হচ্ছে যে আমরা পরীক্ষার হলে পৌঁছানোর পর আমরা অবশ্যই পরীক্ষার হলে যখন গিয়ে বসবো কম্পিউটারের সামনে, প্রশ্নপত্র যেরকমই থাক না কেন, যদি 4-5টা প্রশ্নের উত্তর খুব পাচ্ছি বা মনে হচ্ছে যে আমার পড়া বিষয় থেকে এসেছে, অত মানে নিজেকে ওই সময় খুব কোনো এক্সাইটমেন্ট দেওয়া যাবে না। আবার পরপর 1 থেকে 10টা প্রশ্ন যদি উত্তর ঠিকমতো করতে না পারি, তার জন্য নিজেকে মরালি ডাউন করা পরীক্ষা হলে একদমই যাবে না। কারণ ওই মুহূর্তে সবথেকে বেস্ট ইমোশন হলো নিজেকে নিউট্রাল রাখা, না কোনো পজিটিভ ইমোশন না কোনো নেগেটিভ ইমোশন, কোনোটাই আমাদের জন্য কিন্তু কোনো উচ্ছ্বাস আহ্লাদ আমাদেরকে ক্ষতি করতে পারে। আবার কোনো রকম মন খারাপ বা দুশ্চিন্তাও কিন্তু আমাদের পরীক্ষা হলে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই ওই মুহূর্তে আমাদের নিউট্রাল থাকতে হবে। তারপর কি 1 থেকে 150 নাম্বার প্রশ্ন পর্যন্ত আমাদেরকে প্রথমে ইজি, তারপর ইজি থেকে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনে যেতে হবে। আর আমরা জানি না যে কোথায় ইজি কোথায় ডিফিকাল্ট প্রশ্ন বসে আছে, কিন্তু এক ঝলক আমরা অবশ্যই প্রথম 2-3 মিনিটের মধ্যে দেখে নিতে পারি। সেই হিসেবে আমরা উত্তর করব পেপার 1 পেপার 2 বোথ। আর আমার ব্যক্তিগতভাবে মতামত হলো যে পেপার 1-এ কেউ কখনো প্রথম যতই ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিংয়ে এক্সপার্ট হও, রিডিং কম্প্রিহেনশন সলভ করতে এক্সপার্ট হও না কেন, প্লিজ তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা কখনোই প্রথমে আরসি এবং ডিআই এর প্যাসেজ সলভ করতে যাবেন না বা যেও না। কারণ পিছনে অনেক কিছু কারণ আছে, আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। আমার তরফ থেকে এটা রইলেও, কারণ পুরোটা ব্যাখ্যা করতে গেলে ভিডিওটা খুব লেন্দি হয়ে যাবে, আমাকে আরও হিন্দিতেও বলতে হবে। তার সাথে কি হচ্ছে যে আমরা কি করব, প্রথমে থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন কিছু সলভ করব, মাঝে মাঝে সময়ে ডিআই আরসি সলভ করব, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, তারপর শেষের দিকেও আবার থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন সলভ করব। সেইভাবে আমরা ব্যালেন্স করব। আর পেপার 2-এও তাই, একই কথা বলবো যে পেপার 2 1 থেকে 100টা প্রশ্ন যে থাকছে সবটাই যে সহজ তা নয়, সবটাই যে কঠিন তা নয়, আমাদেরকে একটুখানি বুঝে শুনে আনসার করতে হবে। আর কোন প্রশ্নে নিদার, নর, নট, অ্যাকসেপ্ট, এক্সক্লুডিং এই শব্দগুলোর দিকে খুব নজর দিতে হবে। এখানে আমরা সিলি মিস্টেক করে জানা উত্তর অনেক সময় ভুল করে আসি, যেটা আমাদের অনেক ভারী পড়ে যায় ভবিষ্যতে ফলাফলের ক্ষেত্রে, দেখতে পেয়েছি বহুবার আমার নিজের ক্ষেত্রে এবং বহু ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একই বিষয় হয়েছে। আমার সাথে কম বেশি তারা সহমত হবেন বা হবে। তার সাথে কি করতে হবে আমাদেরকে, কোনো রকম কোনো একটা মানে যেহেতু আমরা যারা নেট এক্সাম দিতে যাই কম বেশি সবাই মাস্টার্স অ্যাপিয়ারিং বা কমপ্লিট করে যায়, অ্যাডাল্টহুড বয়সেই তারা থাকে। তো কোনো ইনভিজিলেটর বা পরীক্ষা দিতে গিয়ে এমন কেউকে দেখে মনের ভেতর একটা কোনো উন্মাদনা, একটা রকম এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে, ওই সময় নিজেকে বলতে হবে যে বাবা বা মা, তুমি নিজেকে সময় দিয়েছো, নিজের মা বাবার
টাকা, সময়, শক্তি সব ব্যয় করেছো, ইনভেস্ট করেছো, তো তার ফল আজকে পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে। যত ভালো এক্সাম হবে তত ভালো ফল। আর এক্সামের ওখানে গিয়ে কোনো রকম কোনো ইনভিজিলেটরকে দেখে হোক বা অন্য কাউকে দেখে হোক, মেল ফিমেল থার্ড জেন্ডার, আমি সমস্ত মানুষের জন্য বলছি। তো যদি কেউকে পাশে যদি আমাদের ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন বা ক্যাটরিনা কাইফে বসে থাকে, ওই সময় নিজেকে মনটাকে শক্ত হাতে ধরে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন পেপারটাকে 3 ঘন্টায় খুব ভালো করে ডিল করতে হবে। তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলে যদি কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়, কারোর ফোন নাম্বার চাইতে হয়, কাউকে প্রপোজ করতে হয়, সবাই সবটা মানে কারোর যদি মনে হয় কেউ করতেই পারে, কিন্তু ডিউরিং এক্সাম বা বিফোর এক্সাম মানে হচ্ছে পরীক্ষার সময় থাকা অবস্থায় একে দিকে তাকানো দেখা বা পরীক্ষার আগে এই সমস্ত করতে যেও না। আর আমরা মানুষ, এগুলো ইমোশন দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কম বেশি সবারই। আর কি বিষয় হচ্ছে যে এই পরীক্ষা মানে প্রত্যেকে প্রিপারেশন নিয়েছে, কারো 1 মাসের, কারো 6 মাস, কারো 1 বছর, কারো 10 বছর, কারো 2 বছরের জার্নি। কিন্তু সফলতা তাদের জন্য বেশি বা তাদের জন্য সিকিওর হবে যারা ওই 3 ঘন্টায় কোয়েশ্চেন পেপারকে খুব ঠান্ডা মাথায় ডিল করবে, খুব ঠান্ডা মাথায় তারা কোয়েশ্চেন পেপারটাকে পড়বে, বুঝবে, উত্তর করবে। আর আমার তরফ থেকে আরও একটা রিকোয়েস্ট, যে একটা প্রশ্নের উত্তর একবার পড়েই উত্তরটা ক্লিক করতে যেও না। একটা প্রশ্নকে অন্তত 2বার পড়ো। আর যদি মনে হয় একবার পড়েই যেটা আমার এখন মনে পড়ছে না বা আমি পারবোই না, তাহলে যেটা মনে হয় সেটা ক্লিক করে চলে যাও বা সেটা পরে এসেও দেখতে পারো। এই একটা বিষয়। আরও কি বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নেই, কোনো প্রশ্নকে মানে ছেড়ে আসা যাবে না, সবগুলো গ্রিন সবুজ কালার ক্লিক করে আসতে হবে, মানে সব প্রশ্নের উত্তর সেভ অ্যান্ড নেক্সট করে আসবে। কোনো নেগেটিভ মার্কিং যেহেতু নেই, যদি আন্দাজেও একটা ঢিল লেগে যায় ওখানে 2 নাম্বার তো অনেক বড় বিষয়। 0.001-এর জন্য আমরা দেখে থাকি প্রচুর কম্পিটিটিভ এক্সামে অনেকেই পিছিয়ে পড়ে সামান্য 0.01%-এর জন্য। তো এটাকে কিন্তু হালকায় নেওয়া যাবে না, এই বিষয়বস্তু। আর পরীক্ষা হয়ে গেলে সবাই ঠিকঠাক মতো নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে, এটাই কামনা করি। অল দি বেস্ট টু অল অফ ইউ। আমার তরফ থেকে সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুধু ইংরেজি সাবজেক্টের জন্য নয়, সবার জন্যই। তো এখন আমাকে এগুলো হিন্দিতে বলতে হবে আর এটাকে এসবি লিটারেচারে আপলোড করতে হবে, তারপর তার साथे নিজেকেও কালকে সকালে एग्ज़ाम देते হবে। तो मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि बहुत सारी चीज़ है जो अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती तो बहुत अच्छे रहते, लेकिन इसके लिए हमें 30 मिनट्स टू उससे भी ज़्यादा भी टाइम चाहिए, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो फटाफट से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। नंबर 1 कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जानी है। उसके साथ आपको वैलिड आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, थंब प्रिंट, लेफ्ट थंब प्रिंट। एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले कुछ चीज़ है और पहुंचने के बाद इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर है। और आप लोग वहाँ पे जाने के बाद ठीक ठाक से एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद आप लोग ठीक ठाक से वो 3 घंटे डील करेंगे। सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो लोग 1 महीने या फिर 1 साल 10 साल प्रिपेयर किया है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 आवर्स, ये 3 घंटे जो कैंडिडेट जितने अच्छे से डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, उनके सक्सेस रेट उतनी ही बढ़ने का संभावना ज़्यादा है। तो आप लोगों को 1 से 5, 10 नंबर क्वेश्चन में आप जब जा रहे हो, पढ़ रहे हो, आंसर कर रहे हो, अगर आप लोगों को लगा कि ईजी है तो भी आपको एक्साइटेड नहीं होनी है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। अगर आपको 1 से 10 नंबर का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तब भी आपको मॉरली डाउन नहीं फील करना है, क्योंकि कोई भी इमोशन, चाहे एक्साइटेड हो चाहे मॉरली डाउन फील, ये इमोशन आपको एग्ज़ाम हॉल में कभी भी लाभ या फिर कभी भी बेनिफिट नहीं देते हैं, आपको नुकसान ही देंगे। उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूट्रल रहो, अपने इमोशन को न्यूट्रल रखो। और इसके साथ साथ क्या, पहले आप इजी टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जाइए। कैसे पता चलेंगे कहाँ पे इजी क्वेश्चन बैठे हुए हैं और कहाँ पे डिफ़िकल्ट? इसके लिए आप एग्ज़ाम शुरू होने के बाद एक 2-3 मिनट के अंदर शुरू से लेकर एंड तक एक झलक देख लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। उसके बाद मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि आप लोग पहले ही जितना भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग में एक्सपर्ट की उतना ही आप हो। मैं कभी भी किसी को ये नहीं सजेस्ट करती कि एग्ज़ाम के शुरू में ही आप पेपर 1 के शुरू में ही आप DIRC करो, कभी नहीं करना। मेरी तरफ से ये मानना है 50 क्वेश्चन में से आप 15, 20, 25 थियोरेटिकल क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करो मिड में। एंडिंग में भी नहीं करनी है RCTI, मैथमेटिकल रीजनिंग, और स्टार्टिंग में भी नहीं करनी है। कब करनी है? मिड में करनी है। फिर मिडिल में वो सारी चीज़ों से डील करने के बाद जो टाइम रहेंगे वहाँ पे आप फिर से थियोरेटिकल क्वेश्चन में जाओ। और एक बात, पेपर 2 इंग्लिश के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए भी एक ही बात, जो क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि आपको पता है आप कर देंगे, ठीक, आप
आपको डाउट हो रहा है तो रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन लग रहा है अब आपको नहीं पता, कुछ ना कुछ तो होंगे, तो आपको उसको क्लिक साथ साथ कर देनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन में जानी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन ग्रीन कलर होना चाहिए, सभी क्वेश्चन के कलर जो ऑप्शन है ग्रीन होना चाहिए, और सेव एंड नेक्स्ट बटन भी क्लिक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन ठीक होंगे तुक्का से भी तो आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। कभी कभी नहीं है, हमने बहुत बार देखा है कि 0.001 से भी बहुत नुकसान हो जाते हैं लोगों को, तो ऐसा नहीं करने का। और क्या बात है? और बात है कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको इन्विजिलेटर को देखकर, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी के लिए बोल रही हूँ, कोई किसी को देखकर एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कोई है बगल में, अगर आपके बगल में कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन भी बैठी हुई है, तब भी आपको सख्ती से रहनी है उस वक्त, क्योंकि आपने अपने आपका और आपके फैमिली का, पेरेंट्स का टाइम, एनर्जी, मनी, समय, पैसे और एनर्जी लगाया है, तो उसको वेस्ट जाने मत देना। किसी को बहुत पसंद आया है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप जाके उनसे बातें कीजिए, उनसे फ़ोन नंबर मांगिए, उनको प्रपोज कर दीजिए, जो भी करिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये नेचुरल फैक्ट है। जितने भी कैंडिडेट हैं सारे एडल्ट है, जो मास्टर्स के अपीयरिंग कैंडिडेट है, चाहे आप मास्टर्स पर पास कर चुके हो, तब भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हम एडल्ट है, तो ये नेचुरल होते हैं। ये भी एक रियल इंसान, रियल टीचर का कहना बनता है, इसमें हंसने वाली या फिर शर्मनाक कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहनी है, आप एग्ज़ाम ठीक ठाक से देकर, डिसिप्लिन मेंटेन करके, अपने एग्ज़ाम हॉल में जब तक आपको परमिशन ना दे आप खुद से बाहर मत आइएगा। कुछ भी ऐसा गलती नहीं करिए कि आप लोगों के ऊपर उन लोगों का कोई गुस्सा आ जाए। ठीक ठाक से सबके साथ रेस्पेक्टफुली बिहेवियर करना और रिस्पेक्टफुली एग्ज़ाम देकर अपने फ्रेंड फैमिली जिनके भी साथ गए हो तो ठीक ठाक से अपने घर या फिर अपनी जगह पहुंच जाना। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें थे इन डिटेल डिस्कस करने के लिए, लेकिन कल एग्ज़ाम है और समय भी हो चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो भी हो गया 11 मिनट से ज़्यादा। और हिंदी बंगाली पार्ट में है, जो आपको ज़रूरत है उसके बेसिस पर आप इस वीडियो को आगे पीछे करके, स्किप करके, पॉज करके, रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे। खुद को बोलिए कि हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रिपरेशन ली है, हमने जितना भी समय दिया, जितना भी किया वो बहुत है। कल हम लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करके ही आएंगे। रिज़ल्ट के बारे में अभी मत सोचिए। कल के 3 आवर जो बहुत ही ठंडे दिमाग से खेलेंगे, बहुत ही ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इतना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई की थी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ, कल 3 घंटे कौन कितना ज़्यादा शांति से, शक्ति से, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करते हैं सफलता, ठीक है। और क्या है, ये क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे, कुछ आपको इंटेलिजेंस गेसवर्क की ज़रूरत होंगे कुछ क्वेश्चन में मेमोरी बेस्ड ज़रूरत होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, कुछ क्वेश्चंस में आपको मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको कोई एडुकेटेड गेसवर्क भी देनी पड़ेगी, तो कभी तुक्का भी लगानी पड़ेगी। ये सारे हैं अप्रोचेस, तो अप्रोचेस पे भी तो काम करना ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस के दौरान हम कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करने के लिए हेल्प करेंगे। और मैचिंग टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, और भी बहुत सारे पैटर्न है क्वेश्चन के, उन सारी चीज़ों से हम लोगों को समझ के आंसर करनी पड़ेगी। कहाँ पे ईदर है, और है, नीदर है, नॉर है, एक्सेप्ट है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, ये सारी चीज़ों पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छे मार्क्स हाथों से गवा देते हैं। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी माच, सी यू सुन, टेक केयर, गुड नाइट, শুভরাত্রি সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। সি ইউ সুন, অল দ্য বেস্ট টু অল অফ ইউ, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে।